class. Now in this video we will study the main topic group theory part 7. Now we will discuss group. Okay, so previous video we have discussed binary operation, algebraic structure, monoid, semi group and groupoid. Okay, so after that the main thing, that is a group, we will start. So please go through my previous video where you have uh, get the clear concept of uh, binary operation, algebraic structure, semi group, monoid and groupoid, from which you will reach here and your concept will clear. Okay, so what is group? So let G be any, let G be an non empty set. Let G be any non empty set, and and an operation and an operation star is defined on it, is defined on it. Okay, and the operator is defined on it, then the structure, then the structure then the structure G with operator is called the group, is called the group is called the group if it satisfies the following properties, the following properties following properties following properties. The first is closure property. The first one is closure property. The first one is closure property. First one is closure property. Okay, the first one is closure property. So we have discussed the closure property. So let we will take an example. Okay, set of integers. We will take an example and set of integers. Set of integers, that is z, and we will take z with plus and multiplication. Okay, the first is when multiplication and second with the uh, first is the end with the addition. Let z is the set of integers. It means -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, and so on and so on. Okay, so first is a closure property. So what the closure property has said, so the set G, the set of the set G is said to be G is said to be closed, said to be closed with respect to the operation star on G on G, that is for every A, B, C belongs to G, then A with operated with B is what we get C, and C is also belongs to G. इसका मतलब है कि अगर कोई सेट G है और उसमें कोई 3 एलिमेंट है A B C, सो अगर A और B को हमने ऑपरेट किया, ए और बी को अगर मैंने ऑपरेट किया और अगर मुझे कोई सी मिला नंबर, तो वो भी जी में अगर होगा तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी. सो यहाँ पर मैं एग्जांपल के साथ सॉल्व भी करती रहती हूँ. द फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी
फॉर इंटीजर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी। सो मैंने क्या लिया, जेड प्लस एक बार लिया मैंने, जेड प्लस के लिए मैंने लिया। सो जेड प्लस के लिए मैंने जब लिया यहाँ पे, सो हमने लिया लेट 2 and 3 -3 बिलोंग्स टू जेड। 2 और 3 माइनस जेड में बिलोंग करते हैं, तो प्लस के साथ 2 प्लस -3 is equal to 2 -3 is equal to -1 is also belongs to z। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब जेड मल्टीप्लीकेशन के लिए भी देखो, जेड मल्टीप्लीकेशन के लिए भी क्या हो गई ये, जेड मल्टीप्लीकेशन के लिए ये क्या होगा, 2 into 3 is equal to -3 is equal to -6 also belongs to z। इसका मतलब क्लोजर है, क्लोजर है। नेक्स्ट सेकंड है, यहाँ पे हम लेंगे एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी एसोसिएटिविटी सो एसोसिएटिविटी इज ओके। सो एसोसिएटिविटी क्या कहता है कि द ऑपरेशन is associative, the operation is associative, that is if for every a b c belongs to g, then a operated with b is operated with c is equal to a operated with b c। Okay, so this is associativity। So what associativity is? Associativity व्हाट, जेड प्लस के लिए एसोसिएटिविटी देखते हैं हम लोग। कोई नंबर ले लेते हैं, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। जेड के लिए हम ले लेते हैं ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। सो कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, 3 नंबर ले लेते हैं यहाँ पे। लेट 2 3 and -4 बिलोंग्स टू जेड। ओके, सो हम यहाँ पे लेते हैं 1, इजी होगा मल्टीप्लीकेशन को, 2 और -4। ओके, सो 1 को 2 के साथ ऑपरेट कराया, और फिर उसके बाद किसके साथ ऑपरेट कराया, -4 के साथ। तो ये कितना आएगा आपका, 3 + -4, दिस इज बिकम्स टू -1 बिलोंग्स टू जेड। नाउ नेक्स्ट आरएचएस के थ्रू देखते हैं, यहाँ पे हम लोग साथ में करके, हम लोग साथ में अगर करते हैं तो इजी भी होगा और साथ में स्पेस भी कम लेगा। सो 1 को 2 के साथ ऑपरेट कराया, फिर इसको मैंने -4 के साथ ऑपरेट कराया। अब मैं पहले क्या करूंगी, 2 को -4 के साथ ऑपरेट कराया। सो दिस इज 3 -4 इज इक्वल टू 1 + 4 - 2 इज -2। So this is -1 is equal to 1 - 2 is equal to -1। So associative है ये, associative because RHS is equal to LHS। Next, the third one is existence of inverse, existence of inverse, existence of inverse। चलिए यहाँ पे मैंने केवल प्लस के लिए लिया, अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन के लिए भी ले लेते हैं। सो जेड मल्टीप्लीकेशन के लिए अगर मैंने लिया यहाँ पे, तो यहाँ आया 1 × 2 -4 is equal to 1 × 2 × -4। so this is 2 × -4 is equal to 1 × -8, the -8 is equal to -8। okay, so existence of inverse, existence of inverse क्या कहता है कि फॉर ईच ए कोई एलिमेंट है जी का, उस हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जिससे हम चाहे मल्टीप्लाई करें या प्लस करें या कोई भी ऑपरेटर करें, हमें वही एलिमेंट मिल जाए। ओके, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए, देयर एग्जिस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स नहीं, दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी, देन इट इज कॉल्ड मोनाइड. मोनोइड के बाद ग्रुप की बात करेंगे हम लोग. फॉर ईच ए, okay, there exists an element, there exists an element denoted by e. कोई एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसको डिनोट करते हैं ई के साथ, डिनोटेड बाय ई, and is called identity, and is called identity, is called identity, such that for every a belongs to g, such that for every a belongs to g. अब एक कोई जी का एलिमेंट है और एक ऐसा ई मिलेगा कि जब उसको ई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो कम्यूटेटिव लेफ्ट कैंसिलेशन से, लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से, हमें क्या मिलेगा, वही एलिमेंट मिलेगा. तो और आइडेंटिटी हमेशा कम्यूटेटिव फॉलो करती है. ओके, नाउ यहाँ भी देखिए हम प्लस का यूज करते हैं. सो प्लस जो है के लिए अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो प्लस के लिए यूज किया. सो यहाँ पे क्या आया, टू के साथ अगर हम जीरो को ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, टू, यानी ई इज इक्वल टू जीरो. और फॉर एवरी टू बिलोंग्स टू जेड, और टू बिलोंग्स टू जेड. ओके, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड. ओके, नेक्स्ट अगर मल्टीप्लीकेशन के लिए मैंने लिया यहाँ पे, सो मल्टीप्लीकेशन के लिए अगर हम यहाँ पे लेंगे तो ये क्या होगा, टू के को वन के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, टू. इट मीन्स ई इज इक्वल टू वन. सो मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी वन और एडिशन के लिए आइडेंटिटी जीरो. सो फोर्थ इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. सो इसे ग्रुप कहेंगे. ये आइडेंटिटी तक तो मोनोइड हो गया. एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या कहता है कि फॉर ईच a belongs to g, for each a belongs to g, there exists an element, a in g, एलिमेंट a in g, g में कोई एलिमेंट होगा a का, हाँ, is called the inverse of a, the inverse of a, such that ए को अगर ए इनवर्स के साथ ऑपरेट करेंगे तो ई मिलेगा, या लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से. ओके, राइट हैंड साइड से. ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ इनवर्स. और एग्जांपल के लिए अगर मैं ले लूं यहाँ पे जो थर्ड है, दिस वन इज अ थर्ड वन और ये फोर्थ वन है इनवर्स. इट मींस जेड प्लस के लिए अगर मैंने लिया यहाँ पे, तो टू में अगर मैंने क्या किया कि मुझे आइडेंटिटी, यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है, क्या करेंगे कि जीरो आ जाए. सो माइनस टू करेंगे तो मेरा क्या आएगा, जीरो आएगा, माइनस टू. सो माइनस टू इज द इनवर्स ऑफ, माइनस टू इज इनवर्स ऑफ टू. ओके, माइनस टू इज इनवर्स ऑफ टू. नेक्स्ट, जेड मल्टीप्लीकेशन के लिए अगर टू को वन बाई टू से डिवाइड करें, इट मीन्स टू को टू इनवर्स करें तो ये मुझे क्या मिलेगा, वन. इट मीन्स वन इज इनवर्स ऑफ, सॉरी, वन बाई टू, टू इनवर्स इज इनवर्स ऑफ टू. ओके, इनवर्स ऑफ टू. ओके, नेक्स्ट अब मैं मुझे वो अबेलियन ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप क्या होता है. अबेलियन ग्रुप होता है कि इफ ग्रुप G with operated with any operator satisfies
satisfies commutative property, commutative property, satisfy commutative property, then it's said to be abelian group. Then it is said to be abelian group. Abelian group. ओके, सेट टू बी द अबेलियन ग्रुप. ओके, अबेलियन ग्रुप क्या होते हैं? जो अगर कोई भी, ये सारी प्रॉपर्टीज तो ग्रुप की साथ में अगर वो कम्यूटेटिव हो गया, यू हैव सीन दैट ना कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये दोनों भी कम्यूटेटिव है. लेकिन अगर इन सब के साथ ही अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए, यानी 2 into 3 और 3 into 2 ऑलवेज 6, सो अगर ये कम्यूटेटिव हो जाए तो वो उस ग्रुप को क्या कहेंगे? अबेलियन ग्रुप. ओके, इट मीन्स A operated with B or B operated with A is always same. So for every AB belongs to G. Okay, so this is a group. So ये clear concept है what is group, कौन कौन सी. So monoid की जो property होगी वो उसमें अगर हमने inverse add कर दिया तो that is called a group. Okay, so here is an example of this one. Okay, so Z is also a integer, is also a abelian. Integer is also abelian. If you want to see that the z plus, so z plus के लिए अगर मैंने यहाँ पे abelian लिया, abelian के लिए, so 2 minus 3 is equal to minus 3 plus 2 is equal to minus 1 minus 1. So it is abelian. It is abelian. Okay, so आप इस ग्रुप के हर एक स्टेप को जाएंगे. इट इज इजी. ओके, सो हम और एग्जाम्पल के थ्रू ग्रुप को समझेंगे. ओके, सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस. थैंक यू.